Well, good evening, students. We have already started in our previous lecture. We were up to the last line. The proportion of capital to which each member is entitled is his shares. देखिए, we will deal with this topic later on in detail. कि शेयर क्या होता है, कितने तरह के शेयर होते हैं. फिलहाल आप जितना भी जानते होंगे शेयर के बारे में, दैट के कंपनी के शेयर्स होते हैं, लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, राइट? But literally what is means that it is your share in the share capital of the company. Let's say you are having rupees 10,000 shares worth of shares of a particular company and the total share capital यानी 10,000 रुपए के आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं and the total share capital of the company is of 50 lakhs. So what does it mean? It means 10,000 divided by 50 lakhs is your शेयर. यानी कि ये 10,000 रुपया आपका शेयर है इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. शेयर कैपिटल यानी कि शेयर के बतौर, यानी इन टर्म्स ऑफ शेयर्स द मनी विच इज कलेक्टेड बाय द कंपनी, दैट इज योर शेयर कैपिटल. सो आपका हिस्सा कितना है? 10,000. टोटल कैपिटल कितना है? 50 लाख. सो शेयर का लिटरल मतलब हिस्सा ही होता है एंड इट इज इन स्मॉल यूनिट्स. Share has a denomination of single units and collectively you can purchase 10, 20,000, whatever you may like. So that becomes your share in the total share capital of the company. Now coming next, now we have already done in the previous lecture generally about company law and certain definitions that we have done. Now characteristic of a company, this is the most important thing to understand. These are the basic characteristics of a company. Right? There may be many like registered companies, this, that. We are not going to deal with that. We are going to deal with the basic things. The smaller things we can deal with any other topic as well. Here we will be starting with number 1 with the separate legal entity, which is the most important thing to understand. So there are 7 main characteristics of a company and the first one being separate legal entity. यानी कि it simply means that a company is created by law and it is separate legal entity. It is created by law and it is separate from its members. देखिए, one thing you have to understand, members और shareholder, they are conversely the same. यानी कि वो एक ही है. members कह लीजिए या shareholders कह लीजिए. What does member and shareholder do? They invest money in the shares of the company. And to that money, the work of the company is conducted or utilized. That money is utilized. So shareholder contributes money and share capital. Through that share capital, the company utilizes that money in running the business of the company. Right? So however great amount or a small amount a person may invest in the share capital of the company, yet the company will remain a separate legal entity. इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल पार्टनरशिप का देता हूं कि वेयर इन ऑल्सो पीपल पूल इन देयर मनी, बिकम पार्टनर एंड डू सम बिजनेस, दैट इज अंडर पार्टनरशिप फर्म, राइट? बट देयर द एंटिटी ऑफ द पार्टनर्स एंड द पार्टनरशिप इज जॉइंट टुगेदर, वेयर एज इन केस ऑफ कंपनी द कंपनी इज लीगली सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह होती है. इट इज जस्ट लाइक अ आर्टिफिशियल पर्सन and it is separate legal entity. For example, myself, I am a legal entity, I am a person. Similarly, company is a legal entity, यानी कि it is legally created artificial person, right? जैसे हमारे rights and duties होते हैं उसी तरह कंपनी के भी rights and duties होते हैं. So it is a legally separate entity from its members. Members पैसे मिलाते हैं, कंपनी को चलाते हैं, but members और कंपनी अलग होते हैं. This you have to understand. This is the main emphasis of this particular point. So company as per law is separate entity from its members. Members may contribute money, but members and the company are not one unit. They are separate. In other words, it has an independent corporate existence. It is like an artificial person created by law. तो कंपनी क्या होती है? नंबर 1, वो मेंबर्स या शेयर होल्डर से अलग होती है. दूसरा, वो भी एक एंटिटी, एक पर्सन की तरह होती है, बट वो आर्टिफिशियली लीगली क्रिएटेड होती है. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड. नाउ द कंपनीज मनी एंड प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द कंपनी एंड नॉट टू द शेयर होल्डर.
ऑल्दो शेयर होल्डर ओन द कंपनी। देखिए, एक तरह से जो लोग पैसे मिला रहे हैं कंपनी के लिए, तो एक तरह से वो ओनर हुए भाई। जितने भी शेयर होल्डर, अब एक शेयर होल्डर फॉर एग्जाम्पल ही हैज कंट्रीब्यूटेड 10,000 रुपीज, whereas there may be another person who has invested 10 lakh or 50 lakh or 1 crore in the shareholding of the company. There can be major shareholder, they can be minor shareholder, but yet they do not own any property of the company, because since it is a separate legal entity, so it owns all this property in its own name. कंपनी की गाड़ी, कंपनी की बिल्डिंग, कंपनी का प्लांट और कोई भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज ओन्ड बाय द कंपनी एज इट इज ओन्ड बाय अ इंडिविजुअल पर्सन. Now, since it is a legally created artificial person, so any property that is vested with the company, it is having ownership over it. So the company is having ownership over it. So the company's money, property belongs to the company and not to the shareholder. हम कितना भी पैसा, करोड़ों रुपया भी लगा ले कंपनी के शेयर्स में, बट हम कंपनी की किसी भी प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर सकते. इट विल बी ओन्ड एंड इट विल बी इन द नेम ऑफ द कंपनी itself. So this point is emphatically proven that the company is a separate legal entity. उसका वजूद अलग होता है, और जो मेंबर शेयर होल्डर जो कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के शेयर्स खरीदने में, उनका वजूद, देयर एग्जिस्टेंस इज सेपरेट फ्रॉम द कंपनी. राइट नाउ नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल दे रखा है. Ramesh and company is entirely different person from Ramesh, even if he holds all the majority shares in the company and its property is not the property of the Ramesh. ये एक प्राइवेट कंपनी का एग्जाम्पल दिया गया है कि रमेश अगर सारे शेयर्स भी मेजॉरिटी उसके पास हों, फिर भी वो उसको ओन नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी अपनी, जो कंपनी की एंटिटी होती है वो सेपरेट होती है, और जो शेयर होल्डर्स होती है उनकी जो उनका वजूद अलग होता है. देयर एग्जिस्टेंस इज सेपरेट फ्रॉम द कंपनी. सिमिलरली द कंपनीज डेब्ट आर द डेब्ट ऑफ द कंपनी एंड रमेश कैन नॉट बी कंपेल्ड टू पे देम. यानी कि लॉस है, प्रॉफिट है, डेब्ट है, सब कंपनी के नाम पे होगा. किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे कभी भी डेब्ट भी नहीं होगा. Thus, once the company is incorporated, it must be treated like any other independent person. Incorporated का मतलब कंपनी एक बार फॉर्म हो गई, एंड कंपनी के फॉर्म होने को हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन. ठीक है. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उस दिन मिलता है जिस दिन कंपनी हमारी एग्जिस्टेंस में आ जाती है. जैसे इंसान का एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है, उसी तरह सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज गिवन बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. ये वो अथॉरिटी होती है जो कंपनीज को अपने इलाके में रेगुलेट करती है. जैसे आरटीओ में, जैसे आरटीओ का ऑफिस होता है ना, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, जहां पे हम लाइसेंस बनवाते हैं गाड़ियों का, तो उस इलाके में आरटीओ का एरिया होता है और सबको वहीं से लाइसेंस बनवाना होता है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है. उसी तरह जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, जितनी भी कंपनीज उस एरिया में होती है, सबको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. ठीक है. और जब कंपनी फॉर्म हो जाती है तो उसे एक सर्टिफिकेट मिलता है, एंड दैट इज कॉल्ड ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सो इट इज जस्ट लाइक ए बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी. फ्रॉम दैट day the company comes into existence or the birth of the company takes place. Right? So we will further continue with this limited liability. This is a very important one. In the live session I will explain in very detail with example that what is limited liability. Over here you have to understand this thing, that the advantages of limited liability of a business debt is one of the principal advantages of doing business by forming a company. कंपनी के बतौर बिजनेस करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप एज अ शेयर होल्डर, जब आप शेयर्स कंपनी के खरीदते हैं, आपकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स. यानी कि आपकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड किस सेंस में है? अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स. मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए के शेयर्स खरीदे हैं, अभी मैंने कंपनी के 5,000 रुपए दिए हैं, तो बचे कितने? 5,000. तो मेरी लायबिलिटी ओनली 5,000 तक ही होगी, नथिंग लेस नथिंग मोर. या दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मैंने कंपनी के 10,000 रुपए के डिनोमिनेशन के शेयर्स खरीदे और मैंने कंपनी को 6,000 रुपए दे दिए. अब कितना बचा? 4,000 रुपए मुझे कंपनी को और देने हैं.
तो माई लाइबिलिटी इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 4,000 रुपीज। इससे ज्यादा मुझे कंपनी को कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज आई नीड टू पे द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। सो वी विल से दिस थिंग दैट माई लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर। एंड इन दिस केस अनपेड कितना है, 10,000 में से 6,000 मैंने दे दिए हैं, 4,000 रुपया रिमेन कर रहा है। सो माई liability is only to the extent of rupees 4,000 and no more। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। In the live session I will explain with example। So we end our session over here only।